آپ کی چائے آپ کے کمرے میں رکھ دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. گرافکس کا سارا کام مکمل ہے, پرنٹ کے لیے تیار ہے. صرف چوتھی قسط کا انتظار ہے کہ پریس کے پچھلے قرضوں کا کھاتہ صاف کر دیا جائے. ابھی تیسرا چیک پاس نہیں ہوا ہے, اس لیے ہم تھوڑا ٹھہر گئے. ابھی آئندہ کے آرڈرز کے بارے میں دیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہم چیک کی وصولی کے لیے ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. مجبوراً انہی حالات میں گزارا کرنا ہوگا. ان کے فائنانس ڈائریکٹر کہہ رہے تھے کچھ اور اشتہاری کمپنیوں نے ہم سے آدھی قیمت پہ آرڈر لینے کی تجویز دی ہے. آپ کا کیا خیال ہے فروزان فر صاحب؟ فروزان فر صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں. کس بارے میں؟ وہی ایگریمنٹ کینسل کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ہمیں ایک وکیل کا انتظام کرنا ہوگا. اس میں تو ٹائم لگے گا اور وکیلوں کی فیس بھی بہت زیادہ ہے. یہ وکیل صاحبہ جس نے ہمارا کیس ہینڈل کیا تھا خاصی پیش رفت کر لی تھی. ان کو ہماری کمپنی کے مسائل سے بھی آشنائی ہے. میرے خیال سے ایک معذرت خواہی کر کے کیس دوبارہ ان کے حوالے کر دیں. ہم اس کے مقروض ہیں, صرف معذرت خواہی سے کام نہیں چلے گا. لیکن ہم پر ان کا قرضہ ایک نئے وکیل کی فیس سے اچھا خاصا کم ہے. ٹھیک ہے, مجھے آج نیخا صاحب سے کسی سلسلے میں ملنا ہے. اس موضوع کے بارے میں بھی ان سے بات کر لوں گا. آپ لوگ میٹنگ جاری رکھیں. آپ شام کو میٹنگ کی رپورٹ مجھے دے دیں. فی الحال خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں اتنی جلدی میں؟ دے رہا ہے. السلام علیکم انجینئر صاحب. کیا ہوا؟ سلام، کیوں سلام. تو کیسی طبیعت ہے؟ ارے بس گھر میں ذرا سیڑھی سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی. ارے تھوڑا احتیاط سے چلا کیجیے جناب. آپ کھیل شروع کیجئے, میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے, خدا حافظ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیا کر دیا ہے؟ اس سے گیدڑ کا کام ہے جسے پٹوایا تھا. تو بتایا کیوں نہیں؟ دوبارہ تم سے التماس نہیں کرنا چاہتا تھا. تم تو میرے مسائل کے ذمہ دار نہیں ہو نا. مگر میں تمہارا دوست نہیں ہوں. جب اس کے ہاتھ توڑوں گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ شیر کے دم سے نہیں کھیلنا چاہیے. میں کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا, کیونکہ ایسے کاموں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. اس دفعہ قانونی راستے سے اس کو سزا دوں گا. کہو نا کہ ڈر گئے ہو. بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ہاں ڈر گیا ہوں. ڈرتا ہوں کہ ممکن ہے تم خون کر بیٹھو اور بالوں کی جگہ سر ہی کاٹ لے آؤ. نہ, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. میرے سپرد کر دو, میں قانونی راستے سے حل کر دوں گا. یہ لڑکا مجرم ہے. کوئی نیا جھگڑا نہ پیدا ہو جائے. اگر کوئی مسئلہ بھی ہوا تو وہ تمہارے لیے نہیں ہوگا, اس کے لیے ہوگا. تم بے فکر رہو. السلام علیکم. دوبارہ وعلیکم خراب ہو السلام. گئی ہے؟ ہاں دوبارہ خراب ہو گئی ہے. فون کر کے سروس والے کو بلا لینا. فون کیا ہے, ابھی آ جائیں گے. کس فلور میں پھنسی ہے؟ 9 اور 10 فلور پہ ان کے بیچ میں, اور ایک آدمی اندر پھنس گیا ہے. اوہ مائی گاڈ. ارے یہ لفٹ ٹھیک کرنے والا کب آئے گا؟ پرسکون رہو, ابھی کھل جائے گا. حوصلہ جناب, مجھے یہاں پھنسے ہوئے 10-15 منٹ ہو گئے ہیں. آرام سے, ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے, ابھی آ جائیں گے. جناب ایک زحمت کریں, بلڈنگ کے انچارج کو بلائیں. اتنا شور نہیں مچاؤ, ابھی آتا ہی ہوگا. جناب جی دیکھیے, میں بھی ایک دفعہ ایسا پھنس گئی تھی. چند دفعہ اوپر نیچے چلی, ٹھیک ہو گئی. آپ بھی آزما سکتے ہیں. ارے محترمہ, اوپر نیچے چلنے سے لفٹ گر ہی نہ جائے. ٹھیک ہے تو پھر منتظر رہیے, ابھی سروس والا آ جائے گا. ارے یہ کہاں آ کر پھنس گیا میں. ہلو, السلام علیکم امی, کیسی ہیں آپ؟ کیا کپڑے کتنے؟ جناب ٹھیک ہے. ہاتھ نہ لگائیں, بٹن کام کرنے لگا ہے. ٹھیک ہے. ہما کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, آپ جیسا سمجھیں. ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ. محترمہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آزرنیہ صاحبہ آپ ہیں؟ السلام علیکم. آپ تھے جو پھنس گئے تھے؟ جی محترمہ, میں ہی تھا.
आप ही ने मुझसे कहा कि ऊपर नीचे जाने को। हाँ, बहुत शुक्रिया, मेरी तो सांस ही बंद होने वाली थी। क्या इस बिल्डिंग का कोई इंचार्ज नहीं है? लोगों को मुसीबत में डाल क्यों रखा है। नहीं है, कई दफा उनसे कह चुके हैं, लेकिन उनके कान पर जूं ही नहीं रेंगती तो क्या किया जा सके। जी माफ़ कीजिएगा। नेखा साहब से एक मुलाकात तय थी, क्या वो तशरीफ रखते हैं? नेखा साहब के सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछ सकते हैं। در این بازار اگر سویدیست به درویش خرسند است خدایا منم گردان به درویشی. جی ہاں. ارے کیا قصہ ہے، انسان کو حابیل و قابیل کی کہانی یاد آ جاتی ہے. جی جناب فروزان فر ہوں. جی 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 ان باتوں کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نقطہ ہے جو آپ بتانا بھول گئے ہوں؟ نہیں، سب کچھ یہی تھا جو میں نے عرض کیا. البتہ ایک بات ہے، میں چاہتا تھا فرمائیے، کہ جو کچھ ہے کہیے، ممکن ہے مفید ثابت میں ہو. چاہتا تھا کہ یہ آپ کی کولیگ محترمہ آذر نیاز صاحب. جی آزانیہ صاحبہ ہمارے باؤنس چیکوں کے کیس کو پہلے کی طرح آگے بڑھائیں. اس بارے میں بات بعد میں کریں گے. لیجیے، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اپنے مرحوم والد کے قتل کے بارے میں معلومات پر نظر ڈالیں. قانون کی روح سے آپ کی باتیں ایک دعوے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں. آپ پہلے میری بات پوری ہونے دیں، پھر بتائیں. جی کہیے. سوری. اگر آپ پچھلے کیس کی طرح اس مسئلے میں بھی اجلت کریں اور بے صبری سے کام لیں گے تو یقیناً کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ پہلے ہمارے آفس میں اپنے اس دعوے کے بارے میں ضروری تحقیقات کرنے دیں. میں آذر نیا صاحبہ سے کہہ دوں گا کہ اس کیس میں ہماری مدد کریں. آپ کی مہربانی. البتہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو ضرور اپنے پچھلے سلوک کی خاطر ان سے معذرت خواہی کرتا. جناب فروزان فر ہوں. جی 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 فروزان فر. ان کی عمر کم ہے لیکن بہت ماہر ہیں اور تجربے کار وکیل ہیں. جی ہاں، ہم تو قرضدار کی جائیداد کو ضبط کرنے کے سلسلے میں ان کے کام سے مطمئن ہیں. جی بس نیکھا صاحب اپنی فیس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو مہربانی ہوگی. میں ذرا اس سلسلے میں اپنے کولیگ سے بات کر لوں، اس کے بعد آپ کو ضرور بتا دوں گا. ایک اور بات نیکھا صاحب، یہ آپ کی لفٹ خراب ہے، شاید کوئی موکل اس میں پھنس جائے، ذرا اس کا بھی کچھ خیال رکھیں. صحیح کہہ رہے ہیں جی. آپ. محترمہ مینجمنٹ کو فون کر کے دیکھیں پھر کیا ہوا ہے. جی اچھا. میں پھر معذرت چاہتا ہوں. خدا حافظ. رمضانی صاحبہ، جی جناب دانشور صاحب کے ایجنڈے کو ٹائپ کیا؟ ہاں جی، کمپیوٹر میں مجھے موجود ایک پرنٹ نکال کے دینے پلیز. آزانیہ صاحبہ ایک منٹ، معاف کیجیے گا. جی فرمائیے. میں ایک دفعہ پھر جو کچھ اس دن پیش آیا آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس سے بھول جائیں فروزان فر صاحب. بہرحال معاف کیجیے. خدا حافظ. جی جی ٹھیک ہے. آذر نیا صاحبہ، جی نیکھا صاحب کو آپ سے کام ہے. ٹھیک ہے. اصل میں نیخا صاحب، مجھے اس کیس پر کام کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اسی لیے یہی آپ کی عدم دلچسپی اور غرور ان کے اصرار کا سبب بنا ہے. اچھا اب چھوڑیں، اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے. مجھے اس وقت گھر جانا ہے، امی کو ہوائی اڈے پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ جا رہی ہیں؟ 2-3 ہفتے کے لیے میری بہن کے پاس سوئٹزرلینڈ جا رہی ہیں. ان کے ہاں ڈیلیوری ہوئی ہے. میں ماموں بن گیا ہوں. ان کی تصویر میرے پاس ہے، بہت پیاری ہے. ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے. مبارک ہو، مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. امی جان کو جانے سے نہیں روک سکتا، آخر وہ بھی میری بہن ہے، اکیلی ہے. تو غزل کا کیا بنے گا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہی تو بہت زیادہ مشکلات میرے سامنے ہیں. ان کی نرس کا بھی چند دن بعد آپریشن ہے. تو میں رہ جاؤں گا اور غزل. البتہ غزل کی والدہ کی مسلسل فون اور فرمائشیں. بہرحال مجھے خوشی ہوگی آپ کی خدمت کر کے. کوئی کام ہو تو تکلف نہ کریں. آپ خاص کر اس کیس پر خود ہی کام کریں، دوسروں کے بس کا کام نہیں ہے. جیسا آپ مناسب سمجھیں. ٹھیک ہے. گھر والوں کو بھی بہت بہت سلام کہنا. ضرور. خدا حافظ.
तुम्हारे ये चचा भी अजीब आदमी है। मैंने 2 घंटे तक इतनी सारी बातें बनाई, एक एक रिश्तेदार को बुरा भला कहा कि ये साहब कम से कम एक जुमला तो बोले, लेकिन उन्होंने तो एकदम मुँह सी लिया। लेकिन अच्छा छोड़, जाने दो बस। क्या चीज़? कुछ नहीं बेहजाद, छोड़ो ना, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। या तो बात मत करो या जब शुरू करो तो आखिर तक बताया करो। असल में बात ज़्यादा अहम नहीं थी, बस जब मैं अपनी बातों में उस जगह पहुंचा कि आपकी कोई बहन हो शायद, तो मेरी बात का मतलब समझ सके, तो चचा ने तेज नज़रों से मुझे घूरा। तो इसका मतलब यह है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। नहीं यार बेहजाद, खामखा बात का बतंगड़ ना बनाओ, तुम अपनी फिक्र का जो, मुझे भी अपना काम करने दो। माफ़ कीजिएगा, आपकी जगह कौन सी होना चाहिए जो इस वक्त नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम सब हमें नौकर समझते हो। हमारी जगह यहीं नीचे है और आप ऊपर ऊपर के हैं। दोबारा शुरू हो गए। अरे खुदा के लिए बस भी करो, इतना मत दहाड़ा करो। मोहतरमा सुरैया साहिबा, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तुम खुद ही इंसान को अपने कामों के बारे में खोज लगाने पर मजबूर कर देते हो। मेरी बहन, मैं तो घर आकर सब कुछ बता दिया करता हूँ, और अगर कोई बात ना भी बता सकूँ तो ये साहब आके साफ साफ बता देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? तुमने अम्मी से कहा, मनोजर से भी कहा कि हमारी एक फूफी है, लेकिन मुझे गैर समझा तुमने। मेरी बहन, आजकल मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुश्किलात में हूँ, तुम इस खाते में डालो। नहीं, मैं इसे खुद को समझे जाने के खाते में डाल रही हूँ। बेहजाद, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सुरैया, कुछ नहीं कहो, बस इतना जान लो कि तुम खुद ही हमारे बीच फासला पैदा कर रहे हो। तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकते थे? हाँ नहीं मेरे भाई, तुम ऐसे इंसान हो कि किसी को अपना बना के नहीं रख सकते। क्यों बताया? मैंने, शायद अम्मी ने बताया हो। अम्मी ने ठीक उसी वक्त सुरैया को बताया जब मैंने तुमसे इसके बारे में बात की। अम्मी ने तो, अरे क्या करूं, मेरी बीवी है ना, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ यार। तुम ना करें मनोजर साहब, ना करें। क्या कह रहे हो यार बेहजाद, क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए नहीं समझते। इसी कजिन से तुम्हारी शादी होने दो, देखना पहले ही हफ्ते में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपनी जिंदगी की सारी दास्तान उसे न तुमने सुना डाली तो मुझे बताना। तुम सिर्फ सवारी देने के लायक हो। अच्छा अच्छा, तुम्हारी सवारी भी देख लेंगे। अच्छा जनाब, देखते हैं। सुरैया, मैडम सुरैया, मुझे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है सुरैया, चलो यहाँ से चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देखो आधे घंटे बाद अभी देखो कस्टमर आया हुआ है। ओके ठीक है। शहरुज साहब, ठीक कह रही हूँ? आरगवान साहिबा, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, इस म्यूजिक की आवाज़ थोड़ा कम कर सकते हैं? क्यों नहीं, लीजिए आपके लिए। आप जानते हैं सीना कितनी रातों से घर नहीं आया है? मैं कौन होता हूँ जानने वाला? क्या वो तुम्हारा पक्का दोस्त नहीं है? क्या मुझे उसके ठिकाने का पता होना चाहिए? उसका मोबाइल बंद है, अगर जानते हो कि कहाँ है तो बता दो। आप अपना नंबर दे दीजिए, कहीं नजर आया तो कह दूंगा कि आपको फोन कर ले। मेरा नंबर मेरे भाई को दोगे? बस भी करो शहरूज, कम से कम अपने दोस्त की बहन की इज्जत रख लो। अच्छा भाई, अब ज्यादा गैरत मत दिलाओ, माफ कीजिएगा। वो अपने दोस्तों के साथ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में मसरूफ है। ठीक है, एड्रेस? वहाँ का एड्रेस गैरों को नहीं दे सकता, वरना दोस्त नाराज हो जाएंगे। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक तो हो? बिल्कुल A1 मोहतरमा, ठीक, एकदम ठीक। देखो शहरूज, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं किसी और तरीके से तुम्हारे साथ पेश आऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, आराम से बाजी, आराम से। हमारे यहाँ पर इज्जत है, कस्टमर मौजूद है। साफ जाहिर है आप ही की तरह के लोग बाइस बनते हैं कि आज के जवान दोस्तों के साथ खयानत करें। हाँ, एड्रेस आर्या शहर, ये ले, ये एड्रेस लीजिए, फरमाइए। बहुत शुक्रिया। देखिए बाजी, मुझे आपका भाई बहुत अजीज है, उसके सामने मेरी बहुत इज्जत है, बेइज्जती नहीं कर दीजिएगा। अजीज है, उसके बावजूद तुम्हारे लिए अहम नहीं है कि चंद दिनों से कहाँ गायब हो ओहो भाई, वो यहाँ पर ड्यूटी तो लगाने आता नहीं है कि मुझे मालूम होना चाहिए।
सुरैया, सुरैया, जी अम्मी जान, क्या हुआ? चचा के घर से है, जवाब दो। बेहसाद का पूछा तो कहो नहीं है। मैं क्या करूं? अच्छा अब जवाब तो दो। मेरे खुदा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ताया जान? ठीक हैं आप? इंशाअल्लाह अब तो ठीक होंगे आप। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इत्तेफाक से इसी बारे में बात कर रहे थे कि रात को सब मिलकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। फिर हमने सोचा कि बेहतर है आपकी तबीयत कुछ संभल जाए, इसके बाद आपको जहमत दें। बहजाद का तो मोबाइल चोरी हो गया है और पिछले 2-3 दिन से वो चेक और कर्ज खाओं के मसाइल में मसरूफ़ है। कर्जदार और जो आप तो जानते ही सब। जानता हूँ परेशान है, लेकिन कहाँ है? एक फोन तो मुझे कर ही सकता था ना। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने चचा का हालचाल तो पूछ ही सकता था ना। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैं से कहूंगी कि आपसे बात करें। खुदा हाफिज। सबको दुआएं कहना। अरे आप बैठे हुए हैं अभी तक, कपड़े क्यों नहीं बदले? अरे मेरी बहन वगैरह रास्ते में है, 4-5 मिनट आपकी इयादत के लिए आना चाहते हैं, जल्दी करें। ठीक है। अरे 50 दफा मैं ये सीढ़ियाँ उतरी चढ़ी हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, खोलिए प्लीज। आरश, हाँ तुम सही नहीं पढ़ रहे हो, क्या हुआ है? थके हुए हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आरश, पहले तुमने सही पढ़ा था, दोबारा तुम पढ़ो उसको। ओके ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। सलाम मोहतरमा, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा मुझे सीना से काम है। मैं सीना को नहीं जानता। तुम्हारे दोस्त जानते हैं। अच्छा आप तशरीफ़ रखिए, थोड़ी देर में उनका काम ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया। कैसा है, अब ठीक है? हाँ ठीक था। ओके। हाँ अच्छा। दोबारा बहुत सुनना अच्छा नहीं था। चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, सही अगर है, आपकी तरफ बहुत से सही ओके है तो ठीक है, फिर कोई दोस्तों मसला नहीं। बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। खातून को आपसे बहुत किया आपने। दोस्तों, आज़रनिया मोहतरम है अपने सीना दोस्त की बहन। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी कहिए। आरिश साहब, मैं सीना को लेने आई हूँ, जब तक उससे नहीं मिल लेती यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप इतना गुस्सा क्यों आए? सीना यहाँ नहीं है, हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आप खुद देख लें। सच कह रहे हैं? देखिए मोहतरमा, ये हमारा स्टूडियो है, यही है, यहाँ पर कोई छुपने की जगह नहीं है, आप देखना चाहें देख सकती हैं। आप ये बताइए जगह ढूंढा कैसे आपने? आप लोग माशाल्लाह से बहुत मशहूर है ना, इसीलिए एड्रेस आसानी से मिला। सीना से मिलें तो मेरा पैगाम दे दें, कहें कि अपना फ़ोन ऑन करे। आपको नहीं पता उनका मोबाइल चोरी हो गया है? वाह वाह, इसी की कमी रह गई थी। अगर मोबाइल चोरी भी हो गया है तो किसी और फ़ोन से कॉल मुझे कर ले, एक फ़ोन तो कर सकता है। शायद बिजी था इसलिए नहीं कर सका। माफ़ कीजिए, अगर काम का मतलब डुगडुगी बजाना है तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। आप मेहरबानी करके मेरा पैगाम उसे पहुंचा दें, बस यही कहें कि घर आ जाए। देखिए मोहतरमा, देखिए ये कोई डुगडुगी बाजी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और हुनर है। और देखिए अब तक जो भी कुछ हो सका हमने अंजाम दिया और आइंदा भी हम अंजाम देते रहेंगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। माफ़ कीजिए जो आपके प्रैक्टिस में खलल डाला। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबू जान ये लीजिए, अम्मी ने आपके लिए बनाया, बड़ी जहमत भी की है। अरे फिर वही शरबत है? नहीं, ये मुख्तलिफ फ्रूट का मिक्सचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम्हें मुझे कुछ बात करनी थी ना? कैसी बात? उस रात तुमने फोन पर कहा कि चची के घर मैं न जाऊं,
फिर मैंने अस्पताल में भी तुमसे पूछा था। आपके लिए गोश्त के साथ सब्जियों का सूप बनाया है, खाएंगे तो ताकत आएगी हिसाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सुरूर साहिबा। तो फिर सही कहते हैं कि नाज उठवाने हो तो बीमार हो जाओ। हाय हाय, अब तक क्या कम खातिरदारी की है। अबू जान, आपकी सारी रिपोर्ट्स का रिजल्ट आ गया है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, आपका शुगर भी हाई है। 2 दिन बाद अस्पताल आइएगा ताकि आपकी आँख का चेकअप हो जाए। 100 बार मैंने आपसे कहा है कि आपके लिए स्ट्रेस कितना मुज़र और जहर की तरह है। बात मत बदलो, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे ख्याल में मेरे और बहजाद की शादी में किसी का भी फायदा नहीं है। क्यों? शादी के बारे में आपके नज़दीक मेरी राय अहम है या नहीं? जाहिर है कि अहम है, बहुत अहम है। असल में अबू जान, मुझे शक है अभी। मुझे कुछ टाइम दीजिए मजीद सोचने के लिए। ठीक है, 1 मिनट में पूछती हूँ। होल्ड। बाहर आओ, देखो आयदा को क्या काम है। क्या काम है? इसके दादा को कब्ज हो गई है तो ये इलाज पूछिए। ओहो, दफा हो जाओ। आई पागल कहीं की। हेलो सलाम, कैसी हो? ठीक हो? क्या हो गया जो मुझे फोन किया है? हाँ, और बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? सलामत रहें। मिला नहीं? नहीं, लेकिन दोस्तों के पास गई थी और उनसे कहा है। ये लड़का मुझे हार्ट अटैक करवा के रहेगा। खुदा ना करे, इतना परेशान ना हो अम्मी, रात तक आ जाएगा। उसका मोबाइल फोन भी लगता है चोरी हो गया है। चोरी हो गया? ओए होए, वो तो अभी अभी तुमने खरीद के दिया था। हाँ, अपनी तो किस्मत ही खराब है। फोन चोरी हो गए तो क्या इन 2-3 दिनों में उसे कोई फोन नहीं मिला कि घर कॉल कर लेता? मुझे तो परेशानी खाई जा रही है। इसीलिए तो कहते हैं माँ हमेशा मर मिटती है और औलाद लापरवाह। ओहो अम्मी जान, लेकिन आप मेरा और हुमा का भी तो हक है। अरे मैं सदके जाऊं तुम सब पर, मेरे जिगर के टुकड़े हो। लेकिन फिलहाल तो ये सीना ने हम सबको परेशान कर रखा है। आएगा। हुमा क्या कर रही है? हमेशा की तरह, गुस्सा और तीखापन, मिर्च और लीमू एक साथ। इसको क्यों नहीं ले गए? दिन को टेलर्स की दुकान से आके कुछ को ले गए, बाकी को हमने सोचा कि सीना खुद आके ले जाएगा और हम भी टैक्सी को 15-16 हज़ार तुमान देने से बच जाएंगे। किस दुकान का है? यही जमहूरी रोड अमीर अकरम के नुक्कड़ पर है। ठीक है, कल मैं खुद ही अपने साथ ले जाऊंगी। बहुत शुक्रिया बेटा। और हाँ, याद आया, फोन करके उन्होंने कहलवाया था कि कुछ कढ़ाई बुनाई का काम भी है, वो भी लेती आना। ठीक है अम्मी। जीती रहो। हाँ, ये हुमा के लिए लिए? हाँ, कल उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। देखती हूँ कि आपकी इस मिर्च लीमू में कितना नमक मिला सकती हूँ। खुदा तुझे यूं ही फला फूला रखे। सलाम वालेकुम मेरी हुमा बहन। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम वकील साहिबा। अरे फिर क्यों गुस्से में हो? मेरे सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका है। आज मुझे बिल्कुल मूड नहीं है। मेरे साथ बात मत करो, यही मेरी आदत है। आखिर मुझे किस बात पर हंसना चाहिए? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं सिलाई करते करते थक गई हूँ। आंखों में रोशनी नहीं बची है, मेरी सारी उंगलियां छिल गई है। समझ गई? तो मुझे किस बात पर खुश होना चाहिए? किस उम्मीद पर? बेवजह में खुश रहो, ऐसे ऐसे करो कि क्या हो? इन बातों को छोड़ो। पता है आज मैंने किसको देखा? किसको? मेहरी साहिबा को। कह रही थी कि खातून आई थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए तहकीक कर रही थी। किसके बारे में? हुमा साहिबा के बारे में। अच्छा, रिश्ता आया है? नहीं आना चाहिए था। उसको भी अपनी जगह पे रखो, मैंने बहुत मेहनत की है उस पर। देखो, डॉक्टर और इंजीनियर से कम इस घर में हम आने ही नहीं देंगे। मैं इतनी भी सस्ती नहीं हूँ मेरी बहन। अगर मालो जायदाद और कारखानों का मालिक हुआ फिर भी नहीं मानोगी? उस वक्त देखा जाएगा कि उसकी शक्ल कैसी है, पैसे वैसे खूब है कि नहीं, और पक पक होना चाहिए। पक पक क्या है जो हर दफा दोहराती हो? तुम्हें पक पक का नहीं पता? यानी पैसे वाला, गंजा, ज्यादा उम्र और छोटे कद का। अरे वाह, कितना खूबसूरत है, मुबारक हो। जज रहा है तुम पर।
नहीं मोहतरमा, ठीक नहीं है, सही नहीं है ना। हाँ, ऑफसेट प्रिंटिंग में तो 300 VPI फॉर्मेट वाली तस्वीर चल जाती है, लेकिन अगर खुद तस्वीर को छोटा बड़ा करेंगे तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। देखिए इसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है। अब आप ऐसा करें कि अपने फोटोग्राफर से कहें कि इस दफ़ा ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के साथ बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर साहब, कैसे हैं आप? खुशामदीद, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ मिनट तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरी इन मैडम के साथ मीटिंग है, कोई काम तो नहीं है? नहीं, सिर्फ ये कि मैंने मीटिंग में भी कहा कि इस प्रिंटिंग का नुकसान हम ही लोगों को भरना है। जी मोहतरमा, हम ही को भरना होगा। कहने में तो आसान है, 5 मिलियन तुमान इस दफ्तर के 1 महीने का किराया बनता है। नहीं है हमारे पास। कई महीनों से हमारी कमाई खर्चे के निस्फ से भी कम है। आखिर में किससे कहूँ? मैं इन सब बातों को जानती हूँ, लेकिन चारे कार क्या है? मुझे नहीं पता, जैसा मुनासिब समझे वैसा करें। जाफरी साहिबा जी, जरा फुकानी साहब का नंबर मिलाइए, सिलसिले में कोई हल निकालूं। आपका ये गवाह क्या नाम था उनका? दिलावर अमीनी। क्या ये अमीनी साहब जानते हैं कि अगर आपके चर्चा पर जुर्म साबित हो गया तो वो भी पकड़ा जाएगा? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? देखिए, इन साहब के दावे के मुताबिक ये 20 साल पहले एक कत्ल का गवाह था। जी। उन तमाम 20 सालों में उसने ब्लैक मेलिंग की है और हकीकत को छुपाया है। जी हाँ, तो ये काम कानूनन जुर्म है। हाँ, असल में मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको उनके साथ एक मुलाकात का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं खुद उनसे बात करूंगी। ठीक है, मैं कह देता हूँ। उम्मीद है वो कोई उज़्र और बहाना पेश नहीं करेगा। आपके ख्याल में उसके मुकरने का इम्कान है? जी मोहतरमा, आप वकील हैं, बेहतर जानती हैं कि आजकल के माशरे में हर इंसान की एक कीमत होती है। हमारा गवाह भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। अगर ऐसा है तो इस केस के नतीजे के बारे में 100% इत्मीनान नहीं रख सकते। लेकिन मेरा गवाह तो सिर्फ दिलावर नहीं है, मेरे पास एक और गवाह भी है जिसने चचा से दिलावर के ब्लैकमेलिंग करते हुए फिल्म बनाई है। नेखा साहब ने ये आपको नहीं बताया? क्यों नहीं? और ये दिलावर भी हमारे साथ जो ताउन पर राजी हुआ है वो इस फिल्म की वजह से है। शायद। देखिए मोहतरमा, मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा हूँ जो वन वे है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मुझे आखिर तक जाना ही जाना है। जी, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन एक वकील के उन्वान से हमारा भी फर्ज है कि केस के तमाम पहलुओं का मद्देनजर रखें। मैं अपनी तहकीकात जारी रखती हूँ, आपको बस इतनी जहमत करना है कि मुझे एक वकालतनामा दे दें। ठीक है। और हाँ, मेरे ख्याल में आपने नेख्वास साहब को बताया था कि आपके गवाह के दावे के मुताबिक आपकी एक फूफी भी है जो आपके वालिद और चचा के इख्तिलाफात से भी बाखबर थी हैं? हाँ, अलबत्ता ये बात दिलावर ने की थी। क्यों भला? आपकी खिदमत में अर्ज करती हूँ।